and I welcome you all and a special welcome to our speaker today, Mr. Khalid Khan. Prior moving to the webinar, let me just give you a brief introduction about our organization, AMP, that is Association of Muslim Professionals. Association of Muslim Professionals is an NGO. We are working for the economic development, employment, and empowerment of the entire community since the past 13 years. AMP has its registered offices in India, USA, UK, and Australia. Our vision is to impact the lives of 10 million people by 2030, thereby building a community which is advanced in education, socially progressive, and economically dynamic. A brief go through about our projects and how we do it. We are doing this change in the society by various programs of us. The first flagship program of AMP is School Development Program, wherein we are adopting the schools, training them, getting the schools connected, developing the lectures, and providing benefit to the students as well as teachers, training, and the stakeholders like parents. 281,000 students have been benefited. Please go through the figures on your screen for further information. Yet another endeavor of ours is Employment Assistance Cell, via which we conduct regular job fairs and job drives and have been successful in getting the candidates employed in the real time. For this also, apart from doing the offline job drives, we have launched a portal called empowerjobs.com, wherein we post 100% verified jobs and the candidates can register, log into the portal and can have the choice of the job or can apply for the dream company. More than 17,000 degree students have been benefited with the ETP programs, that is the employability training programs that we conduct. So just not only providing them the job opportunities, but making them employable in terms of making them industry ready, giving them the necessary skills that are required to get themselves employed. Yet another program of ours is scholarships and self-employment. This again, we were doing it offline. Now we have built up a system wherein we are going live and raising the causes every day and completing them via our portal called indiazakat.com, which is a crowdfunding platform wherein we bring together the zakat seekers and the zakat donors. We are doing it mainly for funds, medical help, more than 1,500 scholarships running there, a constant endeavor to make them available for the career options that are there in the market. We are getting the student council, we are getting the career chart distribution, documents, and conducting webinars like this one, which is updating the students about the options available, where to go, how to do. Then we have awards and partnerships, wherein 380 plus renowned educationists have been connected. Every year we distribute this awards to the educationists. Various skill training job fairs, including state governments, have been conducted, and more than 500 NGOs are with us now. Yet another endeavor of us is indiamentors.com, which is career development of the student followed in the West, that is handholding states, 16 countries, and 6,000 active members. More than 125,000 social media platforms where various professionals have been connected with us. You can always log on to our website, join AMP, being a volunteer, being a contributor, being a cause raiser, a donor, a speaker, and can contribute to the society. Our website is www.ampindia.org, and you can see the further information on your screen. With this, let me introduce today's speaker, Mr. Khalid Khan, to you. Mr. Khalid Khan is an ex-Indian Air Force officer, a motivational speaker, a career coach,
He holds the position of principal in St. Harris High School and the founder director of Hajra Girls Junior College. Over to you, Mr. Khalid Khan. Welcome once again. Okay, thank you, Ms. Sophia. This is really great to be with the AMP team again. Today we are going to talk about the Indian Air Force, the career in the Indian Air Force, and we have already covered Indian Army and Indian Navy. So, Army, जैसे कि मालूम है कि we are the fourth largest army of the world, and Navy we have the seventh largest Navy in the world, and same is the case with the Air Force. Air Force जो है वो भी हमारी fourth नंबर पे आती है दुनिया में. So we are a part of one of the strongest forces in the world. तो अभी तक जो हमने आर्मी में और नेवी का रोल देखा उसमें आपने देखा कि किस तरीके से क्या रोल है आर्मी का और क्या रोल है नेवी का. और अभी आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की. बेसिकली ये तीनों सर्विसेज जो है तीनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से नेट करती हैं, कोऑर्डिनेट करती हैं, और तभी जाकर के कंट्री को सही मानों में डिफेंस मिलती है. एयर विंग यानी कि एयरफोर्स या नेवी जो है वो सपोर्टिंग विंग है आर्मी के. मेन जो फाइट है या विनिंग स्ट्रैटेजी कह लीजिए या और कुछ भी अगर आप कहना चाहें तो वो आर्मी के हाथ में रहती है. जब भी कोई वार वगैरह होती है तो नेवी जो है वो जो मैरीटाइम वाटर्स हैं तो उनको सेफ गार्ड करती है ताकि कोई समुद्री इलाके से मुल्क के ऊपर जो है हमलावर ना हो सके. और जो रीजन मतलब जो लैंड का एरिया है वहाँ पे आर्मी जो है फुल डिफेंड करती है कंट्री को. और एयरफोर्स जो है वो सपोर्टिंग हैंड रहती है आर्मी का. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो रहता है वो ये कि दुश्मन की कमर तोड़ने का काम एयरफोर्स करती है. यानी कि जहाज में रहते हैं क्योंकि फाइटर जेट्स रहते हैं और दे फ्लाई विद ट्वाइस द मैक टाइम. तो यानी कि आवाज़ की डबल स्पीड से ट्रिपल स्पीड से फ्लाई कर सकते हैं. तो उस सूरत में क्या होता है कि आप जितने भी सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं आपके तो आप दुश्मन की कंट्री में जाकर के वहाँ की जो उनके बहुत ही पिवोटल और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पे बम्बार्डमेंट करके उनकी सप्लाई लाइन को तोड़ने का काम करते हैं ताकि उनकी सप्लाई लाइन बंद हो जाए और आर्मी की जो सपोर्ट है वो कम हो जाए. तो इस तरीके से आप अपनी आर्मी को सपोर्ट करते हैं. प्लस एयर लिफ्टिंग का जो पर्सनल है आर्मी के पर्सनल है या एयरफोर्स पर्सनल है मुख्तलिफ जगहों पे या जो पहाड़ी इलाके हैं जो ट्रेन हैं जहाँ पे बहुत मुश्किल से पहुँचा जा सकता है तो उन तमाम जगहों पे हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मदद से लोगों को पहुँचाना, आर्मामेंट्स पहुँचाना, इस तरीके का काम रहता है ताकि कंट्री को डिफेंड किया जा सके. और रिसेंटली हमने देखा कि चाइना में जो जिस तरीके से लद्दाख के एरिया में घुसपैठ की तो वहाँ तक सब कुछ काम इतनी आसानी से वहाँ पहुँचना मुश्किल था. तो एयरफोर्स वहाँ पे भी बहुत अहम रोल प्ले करती है कि किस तरीके से पर्सनल को या जो आर्टिलरी है या फौज है उसको वहाँ तक पहुँचाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है. तो एयरफोर्स का ये एक बहुत अहम काम है कि दुश्मन की कमर तोड़ने में उसको करना है. और अगर दूसरी साइड से भी कोई जहाज़ अपने मुल्क के ऊपर हमलावर हों तो उनको भी रोकना, इंटरसेप्ट करना, ये एयरफोर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स में आता है. इसके साथ ही पीस टाइम में भी एयरफोर्स जो है वो बहुत काम करती है, ख़ास तरीके से फ्लड्स वगैरह में. जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा कि हिमाचल साइड पे जो लैंडस्लाइड वगैरह हुई थी तो उसमें भी एयरफोर्स ने बहुत ही रिकॉर्ड लोगों को वहाँ से इवाकुएट किया और लोगों की मदद की. इसी तरीके से जो फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं या और भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर या कुछ होता है तो उसमें जो सिविल अथॉरिटीज़ के जो है एयरफोर्स बहुत अच्छे से मदद करती है ताकि वो लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें. इस सिलसिले में जो देखा जाए कि जो लड़ाई जो अगर होती है, जंग होती है अगर किसी भी दूसरे मुल्क से तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है आर्मी का होता है. और एयरफोर्स जो है वो एक सपोर्टिंग विंग की हैसियत से उसको काम करती है और दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्टिंग विंग इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपनी आर्मी को बहुत सपोर्टिंग हैंड जो है वो फराहम करती है. और इसमें ये भी बात नोट करने की है कि आर्मी की जीत जो है वही जीत होती है. एयरफोर्स कितना भी अंदर घुस के मार के आ जाए लेकिन वो जीत में शुमार नहीं होता है. और एयरफोर्स का मामला ऐसा है कि यानी कि आर्मी की जब बात हम करते हैं तो आर्मी जितना आगे बढ़ती है, ज़मीन कब्जा करती है तो वो उतनी ही जीत मानी जाती है. और जितने कदम अगर पीछे हटना पड़ा तो वो उतनी अपनी हार होती है.
तो इस लिहाज से आर्मी जो है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से। और जो सपोर्टिंग हैंड है, तो इंडियन एयरफोर्स जो है वो नेवी में भी यानी कि समंदर में भी और लैंड के ऊपर भी, दोनों जगह पर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये एक छोटी सी बात थी, मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफली हिस्ट्री बता दूं, क्योंकि एयरफोर्स जो है वो यंगेस्ट फोर्स है आर्मी नेवी और तीनों फोर्सेस में यंगेस्ट फोर्स है, क्योंकि इसकी जो बर्थ है यानी कि जो इसका एग्जिस्टेंस है वो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और इसके पीछे एक तो छोटी सी हिस्ट्री है, क्योंकि 1903 में तो जहाज़ इन्वेंट हुआ था, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ भी कोई भी दुनिया की कोई भी एयरफोर्स जो थी कुछ भी उसमें कोई खास रोल प्ले नहीं कर पाए थे, क्योंकि उतना एडवांस नहीं हो पाया था सिस्टम कि कोई फर्स्ट वर्ल्ड वार में कुछ काम करते। हाँ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में काफ़ी रोल अदा किया गया। तो इस सिलसिले में चूँकि हमारा कंट्री जो था उस टाइम ब्रिटिश रूल के अंडर में था, और ब्रिटिश जो थी वो अपने वर्ल्ड पावर थी उस टाइम में, तो वहाँ से अगर हम देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से 1925 में एक कमेटी बनाई गई, सैंड ट्रस्ट कमेटी, या जिसको शीनी कमेटी भी बोलते हैं। और उसमें ये सोचा गया कि इंडियंस को कमीशन ऑफिसर्स कैसे बनाया जाए, यानी कि इंडियन उसमें उस टाइम तक एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर्स की पोजीशन पे नहीं थे। तो उसमें ये सोचा गया गौर करने के लिए एक 1925 में एक कमेटी बनाई गई कि उसमें आप इंडियंस को कमीशन ऑफिसर कैसे बनाएंगे। उसकी रिपोर्ट जो थी 1 अप्रैल 1927 को सबमिट की गई गवर्नमेंट को, और फिर ये तय हुआ कि हाँ कुछ इंडियंस को कमीशन ऑफिसर बनाया जाए। और इसकी ट्रेनिंग जो है वो एट रॉयल एयरफोर्स कॉलेज कार्नवेल इंग्लैंड में तैनात होना तय पाई। और 1928 में जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने एक 2 सीट जो थी इंडियंस के लिए रिजर्व कर दी फॉर कमीशन ऑफिसर्स के लिए। और इस तरीके से 1927 में जो था 1928 में इसकी जो थी 2 सीट्स रिजर्व हो गई। और 1930 में 6 इंडियंस का सिलेक्शन हुआ एज ए कमीशन ऑफिसर्स, और उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं: मिस्टर S.C. सरकार, सुब्रतो मुखर्जी, भूपेंद्र सिंह, अवान, अमरजीत सिंह, J.N. टंडन। ये 6 ऑफिसर्स थे जिनको सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट टाइम रॉयल एयरफोर्स में। इसको एयर आर्म ऑफ द आर्मी उस टाइम कहा जाता था। लेकिन फिर बाकी और जो थे उसमें 22 एयरमैन 1932 में 19 जनवरी 1932 को 22 एयरमैन जो थे वो सिलेक्ट हुए एज ए ग्राउंड स्टाफ। और इनकी ट्रेनिंग जो थी वो कराची में हुई, और उस टाइम में इनको एयरमैन ना बोल करके हवाई सिपाही बोला जाता था। 4 अप्रैल 1932 को गवर्नमेंट पास ए बिल कि एयरफोर्स का क्याम किया जाए, और 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये एक छोटी सी इसकी हिस्ट्री है कि किस तरीके से ये बनी थी। और सबसे पहला नंबर 1 स्क्वाड्रन जो था वो बना था उसका पेरिस रोड कराची में, और 4 उसमें रैपिड एयरक्राफ्ट थे, 6 ऑफिसर्स एंड 22 एयरमैन के साथ में। 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो उस टाइम में जो थे 1 स्क्वाड्रन था, लेकिन 16 ऑफिसर्स हो गए एंड 144 एयरमैन जो थे उसमें आ गए थे टू पेट्रोल द कोस्टल एरिया ऑफ जापान, बिकॉज जापान वाज अ बिग पावर दैट टाइम। तो ख़ास तरीके से जो बंगाल साइड का एरिया है वहाँ पे उनको पेट्रोल करने के लिए और जापानीज आर्मी को रोकने के लिए जो था ये इसका नंबर 1 स्क्वाड्रन का काम था उस टाइम पे। 1943 में 8 स्क्वाड्रन्स बन चुके थे, और उसमें 911 ऑफिसर्स थे, और तकरीबन 40,146 एयरमैन भी इंडोल किए जा चुके थे। 1945 में जो था 10 स्क्वाड्रन्स हो गए थे। तो इस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ में एयरफोर्स ने ग्रोथ किया और डेवलपमेंट के सीढ़ी चढ़ती चली गई। और आज एयरफोर्स जो है दुनिया की 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स है। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000 पर्सनल इंक्लूडिंग ऑफिसर्स। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15,000 करीब जो हैं ऑफिसर्स हैं, और रिमेनिंग 1,55,000 जो है एयरमैन यानी ग्राउंड सपोर्टिंग स्टाफ है। और किसी भी काम को करने के लिए खास तरीके से फ्लाइंग मशीन्स को हवा में उड़ाए रखने के लिए एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो ग्राउंड पे सपोर्टिंग के लिए चाहिए होते हैं। उसमें इंजीनियर्स भी होते हैं और टेक्नीशियंस और एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सी चीज़ें सभी कुछ। तो इसलिए मैं कहता भी हूँ कि ये जो डिफेंस सर्विसेज हैं ये अपने अंदर खुद एक दुनिया है।
इनको बाहर से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हर चीज़ खुद अपने आप मेंटेन करके रखते हैं। इस वक्त जो है इंडियन एयरफोर्स में तकरीबन 1748 प्लस एयरक्राफ्ट हैं। इसमें फाइटर्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट्स भी हैं और हेलीकॉप्टर्स भी। और मोटो ऑफ द एयरफोर्स है टच द स्काई विद ग्लोरी। और जैसे कि लाइन ऑफ कंट्रोल आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज द कमांडर इन चीफ, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके फॉलोड बाय द डिफेंस मिनिस्टर एंड देन ऑफ द रिस्पेक्टिव फोर्सेस के चीफ, यानी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये तीनों आते हैं। तो दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल यू कैन से। और इंडियन एयरफोर्स के इंडिया में जो है 7 कमांड्स हैं, यानी कि इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 रीजन्स। और उसमें जो मैं उसके हेडक्वार्टर्स का बताऊंगा आपको कि जैसे नंबर 1 पे सेंट्रल एयर कमांड, और इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो इलाहाबाद में है, यानी कि ये सेंट्रली लोकेटेड है ये इंडिया में, तो इसलिए सेंट्रल एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। देन ईस्टर्न एयर कमांड, और इसका हेडक्वार्टर जो है शिलोंग में है। देन साउदर्न एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर त्रिवंतपुरम में है। और वेस्टर्न एयर कमांड इसका न्यू दिल्ली में है। और स्वैक SWAC यानी साउथ वेस्टर्न एयर कमांड, इसका हेडक्वार्टर जोधपुर में है। और मेंटेनेंस कमांड इसमें तमाम चीज़ें जो इक्विपमेंट्स हैं, सप्लाई है, लॉजिस्टिक्स है, ये तमाम चीज़ें जो है मेंटेनेंस कमांड के अंडर में आती हैं। और ये जो है ये नागपुर में है। और 7th जो है वो है ट्रेनिंग कमांड, और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। तो ये 5 इसमें जो है हमारे जो कमांड्स हैं वो फाइटर यानी कि प्रोग्राम्स को लेकर चलती है। और एक कमांड जो है मेंटेनेंस चीज़ को देखती है, और तीसरी जो है वो ट्रेनिंग पार्ट को कंप्लीट करती है। तो दिस इज व्हाट द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो यहाँ पे एयरफोर्स जो है वो आपको मुख्तलिफ जगहों से इसका इन्वॉल्वमेंट जो है मुख्तलिफ जगहों पे होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है आर्म्ड फोर्सेस का, डिफेंस का जो है मोर और लेस सेम है, और थ्रू डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स इट कैन बी क्रिएटेड। तो मैं आपको कुछ स्लाइड्स के जरिए से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसमें एंट्री ली जा सकती है और क्या क्या इसके अंदर काम किए जा सकते हैं। तो देखिए इसमें मेनली एयरफोर्स में जो है आपको 3 ब्रांचेस जो हैं वो मिलेंगी, जिसको मैं आपको कुछ स्लाइड्स के जरिए से बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे कि इंडियन एयरफोर्स मेनली 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इसका ये कह लीजिए आप फ्लाइंग ब्रांच है। और फ्लाइंग ब्रांच में जो है इसमें जो है आपका फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर, तीनों किस्म के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसको फ्लाइंग ब्रांच कहा जाता है। और इसमें जो है मेनली जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, ख़ास तरीके से जिनके पास फिजिक्स एंड मैथ्स उन्होंने पढ़ी है 12th लेवल तक, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि बहुत कुछ साइंटिफिक उनको स्टडी करना पड़ता है। फिजिक्स इसमें बहुत काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है, ग्रेविटेशनल पुल है, विंड डायरेक्शन है, विंड का स्पीड है, फिर और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि एयरक्राफ्ट फ्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है कि इंसान को फिजिक्स आना चाहिए। सेकेंड चीज़ है मैथमेटिक्स, यानी कि कैलकुलेशन, डिग्रीज का आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए, देन डिस्टेंस, देन स्पीड, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको मैथमेटिक्स से रिलेट करती हैं। तो इसमें फ्लाइंग ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ जो लोग इसमें मैथ्स और फिजिक्स जिन्होंने 12th लेवल तक पढ़ा है रेगुलर स्कूल में या कॉलेज में, सिर्फ वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कि वो इसको अप्लाई कर पाएँ। नंबर 2 है टेक्निकल। और टेक्निकल में आपके जो है इंजीनियर्स एंड द टेक्नीशियंस दोनों तरीके के पर्सनल इसमें लगते हैं। जो जिन्होंने BE डिग्री की है, किसी भी फील्ड में की है, ख़ास तरीके से AEL AEM वगैरह जो है, वो खुद एयरफोर्स भी जो है बेंगलोर में उसकी कॉलेज है FTC एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज, तो वहाँ से करवाती है। और भी दूसरी जगहों पर भी इसके जो जिन्होंने बाहर से डिग्रीज की हैं तो उनको भी एयरफोर्स उसमें इंडक्ट करती है। तो टेक्निकल में, और इसके अलावा जो टेक्नीशियंस हैं यानी कि जो रिपेयरिंग के मेन हैं, उनकी मुख्तलिफ जगहों यानी मैड्रास में यानी कि चेन्नई में भी इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर एयरमैन को ट्रेन किया जाता है टेक्निकल सपोर्ट के लिए, ताकि एयरक्राफ्ट्स को रनिंग कंडीशन में रख सकें। और टेक्निकल जो है सिर्फ यहाँ इनका सिर्फ टेक्निकल अगर हम बात करें तो सिर्फ एयरक्राफ्ट तक महदूद नहीं है,
ये हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट जहाज और ये अपने फाइटर्स के साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपकी जो मिलिट्री के ट्रक्स वगैरह जो आप देखते हैं, वो बसेस या और जो एम्यूनिशन है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, गन्स हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो टेक्निकल सपोर्ट में आ जाती हैं और इसमें तमाम चीज़ों में इंजीनियर्स ही इसमें लगते हैं। और तीसरी चीज़ है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपको जो है पूरी सपोर्ट जो है, यानी जितना भी बड़ा फ्लीट है एयरफोर्स का, उसको सपोर्ट करने के लिए नॉन टेक्निकल लोगों की ज़रूरत लगती है। उसमें एमबीएस लगते हैं, उसमें अकाउंटेंट्स लगते हैं, सीए लगते हैं, एजुकेशन ब्रांच है, और ये कि आपको लॉजिस्टिक्स का लगता है। तो बहुत सी जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की होती हैं, तो उस किस्म के तमाम लोग इसमें आपके आते हैं, जो कि इसमें वो करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हम कितने तरीके से एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेनली इसमें 7 वेज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए 7 तरीके हैं, और उसका जो तरीके हैं वो मैं एक-एक करके थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। पहला जो इसमें बात करेंगे हम तरीका है, वो है एनडीए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। और नंबर 2 पे जो आता है वो है सीडीएसई, यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। नंबर 3 पे आता है एफकैट, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। और नंबर 4 आता है आपका एनसीसी स्पेशल एंट्री। और नंबर 5 पे अगर आप देखें तो दिस इज मेट्रोलॉजी एंट्री। और नंबर 6 पे अगर देखें आप तो एक्स एंड वाई ग्रुप्स फॉर एयरमैन एंट्री। और नंबर 7 में होता है एयरफोर्स रैली भर्ती। तो ये 7 तरीके हैं जिनसे कि आप जो है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, अपनी एज, अपनी लियाकत, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें हम एक करके देखेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। जैसे पहले नंबर पे हम लेंगे आपका एनडीए, यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती है। एक्सक्यूज मी, यस। खालिद खान साहब, आप क्या स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हाँ। नहीं, स्क्रीन आपका नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा है? जी। तो आई डोंट नो, हियर इट इज। नहीं नहीं, आप स्क्रीन शेयर ऑप्शन कर। स्क्रीन शेयर ऑप्शन। स्क्रीन शेयर ओपन जूम जूम मीटिंग जूम मीटिंग स्क्रीन शेयर ग्रीन बटन अच्छा, ये मीटिंग। close the PPT sir. PPT open will close for this one. This one. PPT sir. Slide. PPT open करें फिर स्क्रीन शेयर करें. फिर स्क्रीन शेयर करें सॉरी. सर सर जूम पे जाइए मीटिंग में. जूम ओपन करें. अभी स्क्रीन शेयर हो जाएगा. PPT को क्लिक करें. सेव इमेज अगर आप शुरू से एक बार स्लाइड्स रन कर दें। हाँ, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि कहाँ से शुरू हुई थी। अर्लियर इज नॉट शोइंग। थैंक यू। सॉरी, एक्चुअली वो ऑफ था। हाँ नहीं, यू वर स्पीकिंग इन द बिगनिंग, तो हमें लगा आप सिर्फ बोल रहे हैं, बट मुझे फिर ख्याल आया कि नो, यू आर शेयरिंग द स्क्रीन, आई बिलीव। थैंक यू। Okay, so I was just discussing about the okay, how we can enter the Air Force. That is 3 ways. Quickly, I'll just go through it again. Mainly, ये मेनली 3 ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज़ फ्लाइंग। और फ्लाइंग के ताल्लुक से मैंने अभी बताया था आपको कि कौन कौन लोग इसमें फ्लाइंग में ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली द फिज़िक्स एंड मैथ्स जो है वो 12th स्टैंडर्ड में होना बहुत कंपलसरी है। और नंबर 2 है टेक्निकल, जिसकी इंजीनियरिंग में और इसमें भी फिज़िक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है 12th में। और नंबर 3 था नॉन टेक्निकल ब्रांच, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच है और सपोर्टिंग ब्रांच है, ये उसके ताल्लुक से है। इसके बाद में जो हम बात कर रहे थे, तो 7 वेज टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स।
कि इसमें 7 तरीके हैं कि जिस तरीके से आप एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 पे है आपका एनडीए, नंबर 2 है आपका सीडीएसई, नंबर 3 सीडीएसई इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, नंबर 3 आपका एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, नंबर 4 इज एनसीसी स्पेशल एंट्री, नंबर 5 इज मेट्रोलॉजी एंट्री, and number 6 is X and Y groups for airmen, and 7th is Air Force Rally Bharti. So these are the 7 ways which through which one can enter into Air Force. And now we will see one by one how you can get into these exams, what is the basic requirement, and how you can go through it. Now let's see that is National Defense Academy. तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है दैट शुड बी 10+2 पास, और इसमें ख़ास तरीके से एयरफोर्स के लिए, हालांकि नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो तीनों सर्विसेज यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए कंबाइंड एक ही एग्ज़ाम जो है लेती है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए 10+2 पास होना कंपल्सरी है, जिसमें कि फिज़िक्स एंड मैथ्स आपके पास होना चाहिए 12th में, और इसमें कोई भी मिनिमम पासिंग परसेंटेज नहीं है कि आपके पास कितनी परसेंटेज होना चाहिए। तो इसलिए 12th में अगर आपने फिजिक्स एंड मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट है और कितने भी परसेंट से आपने पास किया है एग्ज़ाम, तो दैट डजंट मैटर, लेकिन आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर इसके बाद में जो है इसका एज क्राइटेरिया देखते हैं कि एनडीए के लिए 12th के फ़ौरन बाद या 12th में रहते हुए आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हैं। जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें नॉर्मली जो एज दिया होता है वो 16.5 to 19.5 ईयर्स के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये एज जो है ये ज्वाइनिंग होना चाहिए, यानी कि जब आप एनडीए ज्वाइन करें तो उस वक्त में आपकी एज जो है इस ग्रुप में होना चाहिए। अगर आप 12th में हैं और आपकी एज 15.5 साल है, तो यानी कि एक तरीके से करिए 15.5 से लेकर के 18.5 साल के बीच में अगर आपकी एज है, so that is the right time where you can apply in the NDA, क्योंकि इसको कंप्लीट होते होते तकरीबन 1 साल का प्रोसीजर जो है वो लग जाता है। तो इसलिए 16.5 का वेट ना करें, बल्कि अगर आप 15.5 के बाद में आप एलिजिबल है, अपने आप को पा रहे हैं, तो you can apply in this, because by the time you complete the procedure of NDA, so it takes nearly 1 year. तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आपकी एज मिनिमम 16.5 to 19.5 होना चाहिए। इसके बाद में जो है आप देखेंगे कि इसमें हाउ टू अप्लाई, दैट इज़ वेरी सिंपल इन फैक्ट, थ्रू यूपीएससी वेबसाइट जो है www.upsconline.nic.in, इसमें इसकी वैकेंसीज निकलती हैं। साल में 2 मरतबा ये एग्ज़ाम होता है, तो दोनों मरतबा आप यानी कि NDA 1 एंड NDA 2, तो इसकी जो वैकेंसीज हैं अक्टूबर नवंबर में अनाउंस होती है, जिसका कि जनवरी फरवरी मार्च में इसका एग्ज़ाम होता है, और इधर जो है अप्रैल में के करीब में फिर वैकेंसी अनाउंस होती है, जिसका जो कि अगस्त सितंबर में इसका एग्ज़ाम होता है। तो इसी तरीके से आप देखें कि इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें कि एनडीए एग्ज़ाम में किस तरीके का रहता है इसमें, तो देखिए एनडीए एग्ज़ाम जो है वो कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, और इसमें जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपको जो है ऑप्शन दिए जाते हैं, एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, OMR शीट रहती है, ब्लैक पेन से आपको जो है जो भी राइट आंसर है उसको आपको ब्लैक एंड करना पड़ेगा कम्प्लीटली। कंप्यूटराइज चेकिंग होती है आंसर शीट्स की, तो इसलिए मैथमेटिक्स के लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम मिलेगा, 120 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 300 मार्क्स होंगे, यानी कि 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए मिलेंगे। और इसमें खास बात ध्यान ये रखना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें कि 0.83 मार्क्स अगर आपका आंसर गलत है तो वो कट हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब आप एनडीए का एग्ज़ाम दें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो कोशिश करें कि जो सही आंसर्स उनको मालूम है सिर्फ उसी को ही अटेम्प्ट करें, गलत आंसर पे या तुक्का मारने की बजाय अगर उसको कैलकुलेशन करके प्रॉपर तरीके से करेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें देखिए 300 मार्क्स का ये है, और 600 मार्क्स का जो है इनका जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, यानी टोटल 900 में अगर आपके 350 से 400 के बीच में अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हैं
तो दैट इज बेसिकली द कट ऑफ। जो अगर आप पिछले सालों की कुछ देखें मेरिट की कट ऑफ क्या है, तो आपको आइडिया होगा कि इसकी मेरिट की जो कट ऑफ रहती है वो इट इज़ नॉट समथिंग वेरी हाई। सो समटाइम्स, और हर साल जो है वो कट ऑफ जो है चेंज हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज या बच्चों ने कैसा परफॉर्म किया है। तो हाईएस्ट जो कट ऑफ अभी तक देखने में आया है वो अराउंड 360 या 350 के आसपास आया है। तो आपका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी मार्क्स आपने, जो भी क्वेश्चंस आपने हल किए हैं वो कंप्लीटली सही हो, और कोशिश ये करें कि 50% क्वेश्चंस ही आप अटेम्प्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट करने के चक्कर में, 1/3 के चक्कर में आप जो है क्वालिफाइंग या कट ऑफ रेंज में भी ना आ पाए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज इसका बाइफर्केशन वगैरह जो है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आने हैं उसको थरोली एनालाइज करना पड़ेगा। यहाँ टाइम नहीं है कि मैं सारी बात बता पाऊँ आपको कि एमबीए के क्वेश्चन का सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो इसलिए वो आपको स्टडी करके अलग से लेना पड़ेगा। हो सके तो कोचिंग ले लें, कम से कम अगर 6 महीने की इसमें कोचिंग आप कहीं पे ले लेते हैं प्राइवेट तरीके से, तो दैट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, और उसमें यकीनन आप जो है क्वालिफाइंग के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और दूसरा पेपर होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का, उसके लिए भी 2.5 घंटे मिलते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं और 600 मार्क्स होते हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। एंड निगेटिव के लिए 1.33 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट हो जाता है, यानी कि 1/3 ऑफ द मार्क्स जो है वो आपका निगेटिव मार्किंग में जाता है। यहाँ भी फार्मूला वही है कि आपको सही आंसर ही अटेम्प्ट करने हैं। करंट अफेयर्स और दूसरी चीज़ों के जो है मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं है। मेनली एम्फेसिस जो है वो इंग्लिश के ऊपर है। तो नियरली 200 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो इंग्लिश का होता है। और इंग्लिश में क्या है कि आप जो ग्रामर है उसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और उसको लगाते हैं तो दैट बिकम्स इजी टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। और इसमें कैलकुलेटर्स वगैरह जो है वो बिल्कुल अलाउड नहीं है, कोई भी आउटसाइड सोर्स से आप नहीं लेके जा सकते। और अगर आप इसको स्टडी करेंगे, इसके साथ ही यहाँ जैसे मुंबई में जो बच्चे हैं, यहाँ मुंबई का तो मुझे इतना इल्म नहीं है कि यहाँ कोई सी एकेडमी है या नहीं है, लेकिन पुणे में एक अनीस एकेडमी है, अनीस कोचिंग क्लास है, जो कि एनटीए के लिए तैयारी कराते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं वो नियर बाई में अपना पुणे में अनीस कोटी साहब से कांटेक्ट करके उनसे जो है उनकी कोचिंग अटेंड कर सकते हैं एनडीए, खास तरीके से एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही फिर आप ये भी देखें कि ये जो दिल्ली साइड पे है, पंजाब में जो है, तो इस किस्म की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इतनी दूर जाने के बजाय आप यहाँ पुणे से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको आराम से इसका एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। तो ये था इसका इंडिया के बारे में। अभी देखते हैं हम इसका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है ये भी तीनों सर्विसेज के लिए कंडक्ट किया जाता है, यानी कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60% मार्क्स एंड 10+2 आपका जो है फिजिक्स एंड मैथ्स में विद 60% मार्क्स होना जरूरी है। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एयरफोर्स। अगर आपने साइंस से 12th पास किया है और आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हासिल किए हैं, देन यू कैन अप्लाई फॉर द कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज फॉर इंडियन एयरफोर्स। हालांकि आर्मी और नेवी के लिए भी ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया हो या इवन 12th भी आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, दैट डजंट मैटर। हालांकि ग्रेजुएशन का तो यहाँ इसमें भी यह है कि ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, लेकिन 10+2 में आपके पास फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो होना है वो दैट इज समथिंग वेरी कंपल्सरी। अब इसमें देखते हैं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। एज इसका बहुत सिंपल है कि 20 से लेकर 24 साल की एज जो है वो आपकी होनी चाहिए। और सेम अगेन यहाँ भी जो है तकरीबन इसको प्रोसीजर कंप्लीट करने में 1 साल लग जाता है। तो 1 साल के हिसाब से आप थोड़ा सा पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 19 ईयर्स अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। 23 ईयर्स की एज तक आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स यू शुड बी 24 ईयर्स कंप्लीट। आई मीन 24 ईयर्स एंड 20 ईयर्स के बीच में आपकी एज होना चाहिए। और पेपर पैटर्न जो है इसका इंग्लिश में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, और 2 घंटे का इसमें टाइम मिलता है। अगेन यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 आवर्स का। एंड एलिमेंट्री मैथ्स जो है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स का 2 आवर्स का इसमें टाइम मिलता है। तो यहाँ भी आपको ज़रा स्पीड में काम करना पड़ेगा, क्योंकि 120 क्वेश्चंस हैं
और 100 मार्क्स का है 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट है और 120 मिनट का टाइम है आपके पास। 1 मिनट अप्रोक्सीमेटली आपको इसके लिए एक क्वेश्चन के लिए मिलता है, और इसमें भी आपको सही क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। नेगेटिव क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने में आपका फायदा इसमें नहीं होगा। तीसरा हम बात करते हैं जो एंट्री का पॉइंट मिलता है, वो है एफकैट, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये खुद एयरफोर्स के थ्रू होता है और इसमें तीनों ब्रांचेस के लिए तीनों जो इसमें ब्रांचेस हैं अपने फ्लाइंग, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, उसके लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड मेन एंड वीमेन बोथ कैन अप्लाई इन दिस। तो उसके जो तरीका है वो इस तरीके से है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाता है, जो इनिशियली 10 ईयर्स के लिए होता है, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स ऑफ सर्विस। एज इसमें 20 से 24 साल की होना चाहिए, और जिन्होंने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस का है उनके पास, उनको एज रिलैक्सेशन जो है वो 2 ईयर्स का दिया गया है, यानी कि अप टू द एज ऑफ 26 ईयर्स दे कैन अप्लाई फॉर द फ्लाइंग ब्रांच फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो ये एक तरीका है। और दूसरा जो है इसमें आपका एलिजिबिलिटी आपकी आएगी, ग्रेजुएशन 60% एग्रीगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। BA, BCom, BSc, BBA, लेकिन 10+2 कंपल्सरी है आपका कि फिजिक्स एंड मैथ्स में ही हो। अगर 10th में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स नहीं है तो देन इन दैट केस यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फ्लाइंग ब्रांच, है ना। तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ये टेक्निकल ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच जो है मेनली फॉर इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनकी एज जो है 20 से 26 साल की एज होना चाहिए, और जो है 10+2 में उनके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, या फिर कोई BE की डिग्री हो उनके पास। तो इस तरीके से ये इनका चलता है। ग्रेजुएशन में भी इनके पास 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। BA, BCom, BSc, BBA वगैरह है, लेकिन 10+2 60% फिजिक्स एंड मैथ्स कंपल्सरी होना चाहिए। फिर देखते हैं नॉन टेक्निकल ब्रांच। नॉन टेक्निकल में मैंने बताया जैसे कि आपको कि अकाउंट्स है, और अकाउंट्स हो गया आपका, एडमिनिस्ट्रेशन है, और भी जो लॉजिस्टिक्स है, या और भी इस तरीके की जो ब्रांचेस हैं, वो तमाम चीज़ें आपका इसमें नॉन टेक्निकल ब्रांच के अंदर में आती है। इसकी एज जो है वो भी 20 से 26 साल की होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें अगर हम, तो क्वालिफिकेशन जो है इसकी आपकी होना चाहिए 60% एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन लेवल पे। तो BA, BCom, BSc, BBA जो भी स्ट्रीम से आपने किया है उसमें आपको एलिजिबल है। 12th में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने फिजिक्स एंड मैथ्स होना ही चाहिए, खासतौर से नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए इट इज़ नॉट एट ऑल कंपलसरी। फिर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो है कुछ इस तरीके से कि 100 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और 2 घंटे का टाइम है, और 300 मार्क्स का जो ये रहेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और MCQ रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड मिलिट्री एटीट्यूड। मिलिट्री एप्टीट्यूड के साथ में इस तरीके के उसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर आपका इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट होगा, यानी कि जो लोग टेक्निकल ब्रांच में जाना चाहते हैं उनके लिए इन एडिशन टू दिस एफकेट नॉर्मल के साथ में आपको इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट का भी होगा, लेकिन 50 क्वेश्चंस होंगे, 45 मिनट्स का टाइम होगा, एंड 150 मार्क्स इसमें होंगे, यानी कि यू हैव टू बी क्विक इनफ टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड अगेन ये भी आपके लिए बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही यहाँ पर भी होंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच एंड नॉन फ्लाइंग ब्रांच के लिए अलग अलग है थोड़ा सा। हाइट जो है फ्लाइंग ब्रांच में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए एक है, 162 सेंटीमीटर्स, यानी उससे कम हाइट अगर आपकी है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फ्लाइंग ब्रांच। एंड वट एवर द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया इज गिवन, इट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वन हैज़ टू फॉलो इट। एंड ग्राउंड ड्यूटीज़ में मेल के लिए है 157.5 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट, एंड द वीमेन के लिए है 152 सेंटीमीटर्स इन द ग्राउंड ड्यूटीज़। ग्राउंड ड्यूटीज़ मीन्स आपका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों आ जाती हैं। और आई साइट जो है वो आपकी 6x6 होना चाहिए, या तो विदाउट स्पेक्टिकल्स या विद स्पेक्टिकल्स, या करेक्टेड बाई 6x6 आपकी आई साइट अगर है, देन दिस इज द मिनिमम आपका
मेडिकल स्टैंडर्ड हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ये इसके जो कुछ टिप्स मैंने सोचे हैं कि इसको किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, ख़ास तरीके से ये एनडीए वगैरह के पेपर्स जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्विकली, टाइम तो ख़त्म होने वाला है शायद। तो इसमें क्या है कि जैसे आप पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश ना करें, इसमें बहुत वास्ट वास्ट से इन द सेंस है तो लिमिटेड, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें पढ़ना पड़ता है। तो यू हैव टू सी योरसेल्फ कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करके देन यू हैव टू गो फॉर द सेलेक्टिव स्टडी। तो इंग्लिश में जैसे मैंने बताया कि तीनों ही एग्जाम्स में, यानी कि आपका एनडीए हो जाए, सीडीएस हो जाए या आपका एफ कैट हो जाए, तो इंग्लिश का अच्छा खासा एम्फेसिस है और उसमें मार्क भी इजीली हासिल किए जा सकते हैं। तो पे मोर फोकस ऑन द इंग्लिश पार्ट। देन मैथमेटिकल पार्ट जो है उसमें आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन सी थ्योरम या कौन सा प्रॉब्लम जो है किस कंसेप्ट के बेस पे काम कर रही है। तो नंबर डजंट मैटर, कोई भी नंबर्स का क्वेश्चन आपके सामने आएगा देन यू विल बी एबल टू आंसर कि ये इसका कंसेप्ट ये इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो यू शुड फोकस ऑन द कंसेप्ट। और नंबर तीसरा इसका जो जो टिप है वो ये है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेन ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि उसका पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, कितने डिफिकल्ट लगते हैं आपके क्वेश्चंस। आपको खुद उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, टाइम यानी कि अपनी घड़ी रख करके सामने कि कितनी देर में आप उसको हल करेंगे, तो वो तमाम चीज़ें आपको इसमें इजीली समझ में आ जाएगा। इसके बाद में फोर्थ एंट्री जो होती है वो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है, यानी कि इसमें जो सिर्फ वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो एयर विंग के सीनियर डिवीजन के, एनसीसी एयर विंग के स्टूडेंट हैं, सीनियर डिवीजन में सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी रिटन टेस्ट नहीं है, दिस इज ए डायरेक्ट एंट्री भी इसको बोला जाता है कि एनसीसी स्पेशल एंट्री यानी कि डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब यह है कि इसकी कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। अगर आपके पास सीनियर डिवीजन का सी सर्टिफिकेट एयर विंग से है तो आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल किए जाएंगे। एसएसबी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जो होता है उसके थ्रू ही हर ऑफिसर को गुजरना पड़ता है। आर्म्ड फोर्सेस की बहुत बड़ी खसूसियत है कि एसएसबी पास किए बगैर कोई ऑफिसर नहीं बन सकता, क्योंकि वहाँ पे सर्टेन क्वालिटीज देखी जाती हैं, एंड दैट इज वी कॉल इट OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, कि जिसके अंदर ये क्वालिटीज कुदरती तौर पे हैं वही लोग इसमें सेलेक्ट होकर के जा सकते हैं। और हर कोई इसमें ऑफिसर नहीं बन सकता, भले ही कितना ही क्वालिफाइड क्यों ना हो, स्कोरर हो, रैंकर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर OLQs यानी एसएसबी क्वालिफाई करने की सलाहियत नहीं है तो ही कैन नॉट बिकम एन ऑफिसर इन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों के अंदर। तो दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट एंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट, ऑल्दो इट इज कॉल्ड इंटरव्यू। इसको इंटरव्यू बोला जाता है, लेकिन इंटरव्यू की भी पोजीशन इतनी अच्छी और इंटरेस्टिंग है कि 5 दिन आपको वहीं रहना पड़ता है, और 5 दिन के अंदर जो है काफ़ी कुछ टेस्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करूँगा कि किस तरीके से आप एसएसबी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी एनसीसी एयर विंग के लिए जो है आपकी एज जो है 24 ईयर्स होना चाहिए और ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होना चाहिए। और अगेन आपका जो 10+2 है उसमें फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपलसरी है, क्योंकि विदाउट दैट आप एयरफोर्स में फ्लाइंग ब्रांच के लिए नहीं जा सकते। इसके बाद में आती है आपकी 5 नंबर पे मेट्रोलॉजी एंट्री। इसमें आपकी एज जो है 20 to 26 ईयर्स होना चाहिए और बीएससी में 60%, यानी कि आपको साइंस साइड से आपने बीएससी किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एमएससी भी चाहिए, जिसमें कि आपके 50% मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में हो, देन यू आर एलिजिबल फॉर मेट्रोलॉजी ब्रांच। तो ये 5 एंट्रीज हो गई। अब हम देखेंगे इसके आगे कि 6 में एक्स एंड वाई ग्रुप क्या कहते हैं आपके लिए। एक्स एंड वाई ग्रुप जो है ये एयरमैन के लिए होता है। एक्स ग्रुप जो होता है वो टेक्निकल टेक्नीशियंस के लिए है, एंड वाई ग्रुप जो होता है वो नॉन टेक्निकल ट्रेड्स के लिए है। तो इसमें टेक्नीशियन जो है आपके एयरफ्रेम फिटर होते हैं, आपके इंजन फिटर होते हैं और मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं। तो इस तरीके के इसके बहुत से ट्रेड्स हैं तो जिसमें जो कि एक्स ग्रुप में आते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो ग्रुप एक्स में आपका 10+2 पीसीएम में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में यानी कि मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, और इंग्लिश में भी 50% होना जरूरी है। एक बात मैं ये साथ में ये बताता चलूँ कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज डिफेंस सर्विसेज आर कंसर्न,
क्योंकि रिटन एग्जाम आपका हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, लेकिन जब आप एसएसबी के लिए जाएंगे तो एसएसबी में आपका पूरा का पूरा एग्जाम इंग्लिश में होता है, यानी कि आपको बात भी करना आना चाहिए और आपको कन्विंस भी करना आना चाहिए, देन ओनली यू कैन क्वालिफाई। तो इंग्लिश एज ए होल देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में हर एग्जाम में आप देखेंगे कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके जो है क्वालिफाइंग एग्जाम के अंदर हैं या नहीं है, वो देखना जरूरी है। और अलग से इसके साथ में शर्त आती है कि पीसीएम के अलावा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके इतने मार्क्स हैं या नहीं है। और एज इसकी जो है 16 to 20 ईयर्स, यानी कि वेरी यंग एज, सून आफ्टर 12th यू कैन ज्वाइन द एयरफोर्स एज एन एयरमैन इन द एक्स ग्रुप। देन आपका आता है ग्रुप वाई। तो ग्रुप वाई में जो है दिस इज फॉर द नॉन टेक्निकल स्ट्रीम, 10+2 आपने किसी भी स्ट्रीम से किया विद 50% मार्क्स, तो यू आर एलिजिबल विद इंग्लिश 50%, इसमें इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। और एज जो है अगेन इसकी भी 16 to 20 ईयर्स एज रहती है। तो ये आपका एग्जाम हो जाता है। इसके बाद में जो है आपका एक्स एंड वाई के अंदर जो है आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी 1600 मीटर्स रेस, यानी कि 1.6 किलोमीटर की रेस जो है वो आपको 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होती है। अगर आप ये 6.5 मिनट के अंदर 1.6 किलोमीटर की रेस नहीं कर पाएंगे तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। फिर उसके बाद में कुछ सिटअप्स हैं, कुछ पुशअप है और चिनअप है, तो कुछ इस तरीके से ये हल्का सा टेस्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। फिर उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, और फिर इसके बाद में SRT यानी कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, यानी कि किस सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, ये इसका एक टेस्ट होता है। और फिर फाइनली होता है इसका मेडिकल। तो ये ग्रुप एक्स एंड वाई के लिए जो है ये छोटा सा ब्रीफली मैंने आपको बताया कि इसमें किस तरीके से टेस्ट होते हैं। और इसके बाद में आता है एयरफोर्स रैली भर्ती, यानी कि 2 ट्रेड्स ऐसे हैं जिसके लिए रैली किया जाता है, ये ग्रुप वाई में आते हैं और इनका नाम है एज होती है इनकी 16 to 20 ईयर्स। और ये IAF पुलिस यानी कि इंडियन एयरफोर्स पुलिस के लिए जो भर्ती होती है वो, और दूसरा होता है मेडिकल असिस्टेंट। तो इन 2 ट्रेड्स के लिए एयरफोर्स की रैली भर्ती होती है, जिसमें कि टाइम टू टाइम जो है मुख्तलिफ जगहों पे इसके लिए एडवर्टीजमेंट आते हैं और वहाँ पे बुला करके इनको टेस्ट किया जाता है। इसके साथ में मैं बता दूं आपको कि ये वीमेन एंट्री के लिए क्या है, 3 ways फॉर द वीमेन टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। क्विकली आई रिवाइज इट बिकॉज ऑलरेडी ये चैप्टर कवर हो गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें बता दूं कि वीमेन के लिए क्या क्या तरीके हैं। नंबर 1 पे है AFCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, फ्लाइंग ब्रांच में वीमेन कैन ज्वाइन। जून एंड दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आता है। फ्लाइंग एंड ग्राउंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच, तीनों ब्रांचेस में जा सकते हैं। एज जो है 20 to 24 ईयर्स है फ्लाइंग ब्रांच के लिए, लेकिन अगर आपके पास CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो उसमें एक्सटेंशन आपको 2 साल का मिलता है, एंड यू कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 26 ईयर्स। ओके, तो 10+2 फिजिक्स एंड मैथ्स कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हाइट इसमें 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दिस इज फॉर द फ्लाइंग ब्रांच फॉर द वीमेन। एंड नंबर 2 इज टेक्निकल, टेक्निकल में अगेन एज 20 to 26 ईयर्स, तभी 60% मार्क्स इन इंजीनियरिंग डिग्री या और इसके बाद में आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड्स अगर हम देखेंगे तो इसमें एज जो है सेम 20 to 26 ईयर्स। एंड एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स ब्रांच के लिए 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। अकाउंट्स एंड एजुकेशन वगैरह BCom 60%, PG MBA पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपका MBA MCA 60%। ये तमाम लोग जो हैं इसमें एज वीमेन जो है दे कैन अप्लाई फॉर द नॉन टेक्निकल ट्रेड्स। फास्ट ट्रैक सिलेक्शन जो होता है वो मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए होता है, जिसमें कि वीमेन ऑल्सो कैन ज्वाइन, और इसके लिए एज जो है 20 to 26 ईयर्स। PG साइंस पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस में जो है आपका 50% होना चाहिए, जनरल मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि ये NCC स्पेशल एंट्री, हियर अगेन द वीमेन कैन ज्वाइन एज ए पायलट ओनली फॉर फ्लाइंग ब्रांच एंड एज 20 to 24 ईयर्स। इन केस ऑफ CPL 26 ईयर्स, 2 साल का एक्सटेंशन इसमें मिलता है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें थी, और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसमें मैं ये बताऊं कि आपको देखिए NDA में तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठते हैं इसमें, यानी तकरीबन 5 लाख के करीब मैं समझता हूँ कि लोग इसमें बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं इसमें एग्ज़ाम के लिए।
लेकिन उसमें मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा तैयारी किए हुए नहीं होती है, या उनको एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में नहीं आता है। और इसमें से जो क्वालिफ़ाई करते हैं, यानी कट ऑफ रेंज में जो पहुँचते हैं बच्चे, तो दे आर हार्डली 8,000 या 9,000 बच्चे ही पास हो पाते हैं 4 या 5 लाख बच्चों में से, जो कि रिटन क्वालिफाई कर पाते हैं। उसकी जो कट ऑफ लाइन है, जो मैंने बताया था कि 350 मार्क्स अगर आप 900 में से लेके आएंगे, देन यू कैन क्वालिफाई इट। तो इतना ज़्यादा गैप उसमें मिलता है। जो ये 8 से 9,000 बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ रेंज में आते हैं, फिर ये एसएसबी के लिए जाते हैं, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इन 8 से 9,000 बच्चों में से सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड से मुश्किल से 500-600 बच्चे जो हैं वो ही रिकमेंड किए जाते हैं। और वो रिकमेंडेशन के बाद में जब मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद में जो फाइनली बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो दे आर समवेयर 300 टू 450 और मैक्सिमम 500। तो दिस इज व्हाट द रेशियो इज। लेकिन अगर आप तैयारी के साथ में जाएंगे, 6 महीने की तैयारी सीरियसली करके जाएंगे, तो कोई वजह नहीं कि आप इसमें ना आ पाए, क्योंकि क्वालिफाइंग जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और मैंने एक थोड़ा सा वर्किंग ये भी किया था कि एसएसबी जो है, एसएसबी भी 900 मार्क्स का होता है। जैसे कि एनडीए का आपका 900 मार्क्स हो गया, फिर एसएसबी के 900 मार्क्स हो गए। तो आउट ऑफ 1800 जिन बच्चों के मार्क्स जो हैं अराउंड 500 टू 700 आते हैं, दे आर रिकमेंडेड। अब एसएसबी के जो मार्क्स अलॉटमेंट होता है वो तो कोई बताता नहीं है, वो दैट्स कॉन्फिडेंशियल, तो वो तो हमें नहीं पता चल पाता। लेकिन आप जो ये रिटन एग्जाम दे रहे हैं, खास तरीके से जो इंग्लिश का पेपर है, उसमें आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप वहाँ से नंबर अपने बनाते चले जाएंगे, तो देन यू कैन कवर अप एंड मेक अप द क्वालिफाइंग मार्क्स, और जो आपकी कट ऑफ रेंज है वहाँ से उसके ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। इसी तरीके से सीडीएस का भी जो है, वहाँ पे उसमें तकरीबन 3.5 से 4 लाख स्टूडेंट जो हैं अपेयर करते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे जो क्वालिफाइंग जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, दे आर अराउंड 5 to 6,000। अगेन दे गो फॉर द एसएसबी, वहाँ से फिर रिकमेंडेशन जो है अराउंड 400-500 बच्चों का रिकमेंडेशन होता है फाइनली फॉर ऑफिसर रैंक्स। तो इस तरीके से स्क्रीनिंग और जो टेस्ट हैं वो काफ़ी टफ लगते हैं देखने वाले को। लेकिन मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि अगर आप तैयारी के साथ में जाएँ, तो इट इज़ नॉट टफ, it becomes very easy. So similar is the case with the IAS examination, civil services. वहाँ भी तकरीबन 9 से 10 लाख कैंडिडेट जो है वो बैठते हैं एग्जाम में, लेकिन फाइनली जो है वो 900 टू 1000 कैंडिडेट्स ओनली आर फाइनली सिलेक्टेड। तो इसलिए वहाँ भी देखा ये गया है कि मेजॉरिटी जो है सिर्फ 1.5 साल के हिसाब से अप्लाई कर देती है कि चलो सब लोग एग्जाम दे रहे हैं, हम भी दे देते हैं। तो ये यहाँ पर भी कुछ बताने के लिए ऐसा होता है कि हम एनडीए का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन ये बताने की बात नहीं है। आपको सीरियसली रियलाइज करके उसको माइन्यूटली स्टडी करना चाहिए। और मैंने जो टिप्स बताए हैं आपको कि नेगेटिव मार्क का ध्यान रखते हुए आपको किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और हो सके अगर पॉसिबल हो आप अफोर्ड कर पाएँ तो कहीं पे 6 महीने की अगर आप कोचिंग ले लें, so that will prove to be very grateful and very useful to you, and you can definitely succeed. And I think I've taken a little more time than usual. Ms. Sophia, you can take over now. Thank you very much. And I have covered almost all the points, and you can see if any points are there, any questions are Thank there. you. Thank you, Mr. Khalid Khan. That was really informative, and the tips are really worth considering and wonderful. I hope the students are benefited. Let us take some questions which are there. This one student, Dilshad, he's saying, I have cleared FCAT 2021 with a score of 192, where the cutoff was 165, and his AFSB is on June 14. So, like, he wants some guidance on this. Okay, what should he do now? Yes, see, SSB ultimately is the very important part where you will be facing the practical questions. I would suggest immediately you can buy any book on SSB from any good store. SSB के लिए बहुत सी किताबें हैं जो कि आप खरीद सकते हैं, किसी भी बुक से मिल जाएंगी आपको, तो यू विल गेट जनरल आइडिया। लेकिन अगेन आई वुड सजेस्ट या तो आप खुद उसको प्रैक्टिस करें, उसमें जो वर्बल एबिलिटी, नॉन वर्बल टेस्ट, रीजनिंग है, और जो दूसरे टेस्ट वगैरह दिए हैं, या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का है, या पिक्चर स्टोरी राइटिंग है, तो इस तरीके के जो टेस्ट उसमें दिए हुए हैं, अगर आप उनको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप कहीं कोचिंग ले लें कुछ महीने भर की, तो दैट विल प्रूव टू बी वेरी यूजफुल टू यू इंशाल्लाह। Another question is regarding the non-technical branch for which you said ki the commerce graduate or the other streams in graduation can apply.
तो is LLB applicable for that? Yes, yes, yes. LLB also applicable and I mean एयर फोर्स में जो है आपको डिफेंस फोर्सेस में एडवोकेट्स भी चाहिए होते हैं, तो एडवोकेट जनरल की एंट्री जो है वो खास तरीके से एंट्री के वैकेंसी की जगह है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑन LLBs they can apply. Okay. And you've spoken about military aptitude test. Can you brief us some about more about how it is like the military aptitude See, test? this is something, aptitude means everybody has got some aptitude, you know. Even Mm-hmm. for flying the aircraft, the pilot aptitude battery test is conducted. Okay. And this is something very typical in the sense कि इसमें 3 टेस्ट होते हैं। एक आपका होता है कंट्रोल स्टिक टेस्ट, यानी कॉकपिट में आपको बिठाया जाता है, कंप्यूटर स्क्रीन सामने होता है और उसके ऊपर एक डॉट रहता है जो कि बहुत तेजी के साथ में पूरे स्क्रीन पे फ्लिकर करता है। एंड विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल स्टिक एंड रडर पेडल्स आपको कंट्रोल करना है कि वो सेंटर में एक स्क्वायर देते हैं, उसके बीच में उसको रखना है। इफ यू आर एबल टू डू इट देन यू आर क्लियरिंग दैट ग्रुप। देन ड्रम टेस्ट होता है। ड्रम टेस्ट में भी बड़ा ऑड सी सिचुएशन होती हैं, जगह जगह पे उसमें डॉट्स होते हैं और वो घूमता है और आपके सामने एक की होती है, वो आपको मैक्सिमम डॉट्स को टच करना है। एंड समटाइम वो की जो है बहुत आगे निकल जाती है, कभी पीछे रह जाती है, मतलब वो समथिंग वेरी अनप्रडिक्टेबल रहता है। तो अगर आप ये इस तरीके का टेस्ट कर लेते हैं देन यू आर फिट टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट। तो इसी तरीके से मिलिट्री एप्टीट्यूड का भी मामला ऐसा है कि आप जो मिलिट्री की जो डिसिप्लिन है, जो उसके एटिकेट है, जो उसका रहन सहन का तरीका है, वो आप कितना कर पाएंगे, कितना एडजस्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए सर्टेन टेस्ट हैं, वो इंसान को करना पड़ते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो है बिजनेस नहीं कर सकता और हर शख्स जो है वो नौकरी नहीं कर सकता। हर एक के अंदर डिफरेंट एप्टीट्यूड, डिफरेंट टैलेंट, डिफरेंट थिंग्स आर देयर। तो उसके हिसाब से वो एक टेस्ट है कि हाउ फिट यू आर फॉर द मिलिट्री सर्विसेज। अच्छा, तो फिर सेम चीज फॉर OLQ, दैट इज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। यस, ऑफ कोर्स। ओके, उसका हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल लेंगे। Inshallah, I'll try to explain what exactly the SSB is and how जी। one should go through it, what are the tests are conducted, and what the preparation is. It is very simple. In fact, one has to be natural, and they can qualify if they possess the qualities. अच्छा, वन मोर क्वेश्चन इज FCAT एंड NDA सेम? तो थोड़ा सा NDA, CDS और FCAT का एक कंपैरिजन अगर आप बता दें। तीनों रिटन एग्जाम है, ये इट इज नॉट डायरेक्ट एंट्री। FCAT का एग्जाम जो है कंपैरेटिवली इजी है NDA और CDS, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये कि उतना डिफिकल्ट मैं नहीं समझता हूँ। हो सकता है, डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि FCAT को कुछ डिफिकल्ट समझ सकते हैं, लेकिन ये NDA और ये जो है CDS, इट नीड्स ग्रेटर प्रिपरेशन, ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। What does the student have in mind कि मैं कौन से एग्जाम के लिए जाऊं, क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट? वेरेवर एलिजिबल, अगर आप 10+2 के बाद में कर रहे हैं तो सीधा NDA का ट्राई करना चाहिए। ओके। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद में ट्राई कर रहे हैं तो देन यू कैन गो फॉर द CDS एंड FCAT बोथ ग्रेजुएशन के बाद में। लेकिन एयरफोर्स में जाने के लिए 10+2 में आपके पास फिजिक्स एंड मैथ्स होना कंपल्सरी है। और एज अ फ्लाइंग ऑफिसर अगर ज्वाइन करना है किसी को एयरफोर्स में तो? हाँ, फ्लाइंग ब्रांच के लिए बात कर रहा हूँ, तो उसमें जो है फिजिक्स एंड मैथ्स 12th में होना कंपल्सरी है। एंड यू कैन ज्वाइन फ्रॉम ऑल द 3 स्ट्रीम्स, यानी कि NDA के थ्रू भी जा सकते हैं आप, CDS के थ्रू भी जा सकते हैं एंड FCAT के थ्रू जा सकते हैं। ओके। नेगेटिव मार्किंग आपने बताया कि सब में होती है बारिंग अ फ्यू, तो FCAT में भी नेगेटिव मार्किंग है? नो, FCAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। NDA में और CDS में 1/3 मार्क जो है डिटेक्ट कर दिया जाता है। और थोड़ा और सा अगर इस पॉइंट से भी देखा जाए तो FCAT जो है इजी है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यू कैन जी अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। जी जी। और SRT, दैट इज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के बारे में अगर आप थोड़ा सा और हमें बताएं तो? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट ये है कि आपके पास में कोई सर्टेन सिचुएशन दे दी जाती है कि जैसे हर चीज़ का सोल्यूशन जो है हर इंसान के हिसाब से दूसरे होते हैं। तो कोई सिचुएशन अगर आपके सामने क्रिएट हो गई कि किसी ने आपको धक्का मार दिया या टक्कर कर दिया, तो हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट सिचुएशन। तो इस तरीके की सिचुएशन जो है वहाँ पे बताई जाती है। तो वो अगर दैट डिपेंड्स कि सिचुएशन क्या है और उसमें कैसे रिएक्ट करना पड़ता है। यानी कि मिलिट्री प्लानिंग भी होती है कि कुछ कंडीशंस दी जाती हैं कि अगर आपकी जो यूनिट है या सर्टेन पर्सनल है वो किसी जगह फंस गए हैं
और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या क्या खाई हैं, क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन भी दी जाती है। तो उसमें देखते हैं कि इन दिस सिचुएशन व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ अ पर्सन। तो खान साहब, कहाँ हमारे स्टूडेंट्स अगर चाहें, जैसे मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, OLQ कहा आपने, या SRT, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं वो? व्हाट आर द सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज? इसके लिए थ्रू बुक्स दे कैन इमीडिएटली गेट थ्रू एंड अच्छा, क्या सिंपल सेपरेट बुक्स। बुक्स आती हैं जो या जो हाँ, कॉमन बुक्स हैं एग्जाम के लिए, उसमें दे गिव अ सेक्शन अबाउट दीज एज वेल? देखिए एसएसबी के लिए तो सेपरेट बुक आती है, हम्म वरना एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो एग्जाम रिटन एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी की 6th से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक की जो बुक्स हैं, अगर हम्म। उनको रेफर करेंगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस ही वहाँ पे आमतौर पे रहता है। नहीं, हेलो, योर ऑडियो इज नॉट क्लियर। सर्टेन लाइक OLQ या SRT या मिलिट्री एप्टीट्यूड में इसने बताया। हेलो, हाँ, हेलो। हेलो, यस। एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, जी। नो, ओके। मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे आपने मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट बताया या OLQ या SRT, तो इसके लिए क्या सोर्सेज हैं? मतलब कुछ अलग से बुक्स हैं फ्रॉम वेयर द स्टूडेंट कैन रेफर, हाँ, या हाँ, कहाँ ये है इसी में अलग मिल से जाएंगे बुक्स? आपको। इसके अंदर मुख्तलिफ चैप्टर्स रहते हैं और उसमें अच्छा। डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई होती हैं, एक्सप्लेनेशन दी हो, सिचुएशंस दी हुई होती हैं, उसका सोल्यूशन भी देते हैं। तो हम्म। तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली ओके। क्या होता है कि जो आदमी का मेंटल फ्रेम है, जो पॉजिटिव सोचता है वो पॉजिटिव ही हर चीज़ को निकालेगा, जो नेगेटिव सोचता है वो हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज में ले जाएगा। तो वो चीज़ वहाँ पे ऑटोमेटिकली निकल के आ जाती है। टेस्ट इतने मतलब ये कि थॉरो हैं कि वहाँ पे आदमी अपनी इनर पर्सनालिटी को छुपा नहीं सकता। दैट इज ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड। हम्म। अच्छा, इज देयर एनी फिजिकल टेस्ट इन दी NDA? तो आपने बताया था पिछले उसमें NDA में फिजिकल टेस्ट इज अ मस्ट, नहीं नहीं, एनडीए में वो नहीं है, दैट इज या कुछ एसएसबी इज उसमें देयर। एक्सेप्शंस हैं? एसएसबी इज कंपल्सरी। एनडीए ओके। क्वालिफाई करने के बाद में, आपका रिटन एग्जाम के बाद में, देन दे हैव टू गो फॉर द एसएसबी। एसएसबी क्वालिफाई करने के बाद में देन मेडिकल। और फिजिकल टेस्ट एज ए होल नहीं है वहाँ पे कुछ। ओके। इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करने के वेज आपने बता दिए हैं ऑलरेडी, quite detailed, the various technical, non-technical options available. LLB is also there, as you said. Just let me check some questions with our FB Live. Or English is a must, that you इंग्लिश इज said. द मस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। So I'm choosing the stream that is PCB or PCM. You need to consider the age criteria, though various technical, non-technical options are also available after the graduation, but you need to work right from the 11th or the junior college of years, and English communication is a must. So you must practice English in terms of the verbal ability, the writing part, everything else which a competitive examination requires. So with this, I think I should go ahead with completing the webinar with a lot of thanks to Mr. Khalid Khan. Today he has covered Indian Air Force ke various options, how to join, what are the opportunities for women, the technical and the non-technical aspects, and though not very comprehensive, complete detail about how to go and prepare about these exams. So once again, thanks a lot to Mr. Khalid Khan. There's one more session which is going to be the crux of all these sessions, that is SSB, as he said. Without SSB, you cannot go to an officer position. So we will definitely wait for the session of April 7th. Thanks a lot, Mr. Khalid Khan, for your guidance. And I also thank all the participants. Now, officially, we are closing the call. Thank you very much. Assalamu alaikum.